चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अराकीन असेंबली केसीआर, हरीश राव और अकबरुद्दीन ओवैसी को गजवेल, सिद्दीपेट और जुनूबी हैदराबाद में बरखी वाजिबात की अदायगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तेलंगाना असेंबली में महकमा बरखी पर आयद खर्च से मुताल्लिक गर्मा गर्म बहस हुई। AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से पूछे गए सवालात पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल के बकाया जात में सिद्दीपेट हल्का पहले नंबर पर, गजवेल दूसरे नंबर पर और जुनूबी हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। उन्होंने पूछा कि ज़ेरे इल्तिवा बरखी मसाइल पर AIMIM ने इतने बरसों से सवाल क्यों नहीं किया। रेवंत रेड्डी का कहना है कि AIMIM अक़लियतों के साथ नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों के साथ खड़ी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अराकीन असेंबली केसीआर, हरीश राव और अकबरुद्दीन ओवैसी को मुताल्लिका हल्कों यानी गजवेल, सिद्दीपेट और जुनूबी हैदराबाद में बरखी वाजिबात की अदायगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్ రావు గారు బాధ్యత వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో 61.37% అధ్యక్ష, గజ్వేల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఇప్పటి వరకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో హైదరాబాద్ సౌత్ నుంచి 43% ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా విద్యుత్ వినియోగం చేసే దాంట్లో బిల్లులు ఎగవేసిన దాంట్లో మొదటి స్థానం సిద్దిపేట ఉంది, రెండవ స్థానంలో గజ్వేల్ ఉంది, మూడవ స్థానంలో హైదరాబాద్ సౌత్ ఉంది। ఈ ముగ్గురు లీడర్లు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించక మొండి బకాయిలల్లా సిద్దిపేట, గజ్వేల్, హైదరాబాద్ సౌత్ ఉన్నది అధ్యక్ష। ఈ రోజు మొత్తం విద్యుత్ రంగమే దివాలా తీయడానికి, అప్పుల పాలు కావడానికి ఈ మూడు ప్రాంతాల నుంచి బిల్లులు చెల్లించకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి దాపురించింది। నేను ఇప్పుడు మీ ద్వారా సభ్యులను నేను అడుగుతున్నా అధ్యక్ష, ఇన్ని పెండింగ్ బకాయిలు ఉన్నాయి, ఇంత బాధ్యతతో మాట్లాడినా, ఇంత డేటా తీసుకొని మాట్లాడినా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఎస్ మా ప్రాంతాల నుంచి బిల్లు చెల్లింపులో బకాయిలు ఉన్నాయి, నేను హరీష్ రావు గారు అదేవిధంగా చంద్రశేఖర్ రావు గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ బిల్లులు చెల్లిస్తామని ఎందుకు ముందుకు రాలేదు సార్? ఇది పద్ధతే సార్? అదేవిధంగా స్పీకర్ సార్, అదేవిధంగా స్పీకర్ BRS के कारगुजार सदर व MLA KTR ने कहा कि व्हाइट पेपर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया है कि ज़राअत को सिर्फ 6 घंटे बिजली दी गई, हालांकि अवाम ने कांग्रेस को 11 मरतबा इख्तियार सौंपा। ऐवान असेंबली में बरखी सरबराही के मामले पर हुई बहस में KTR ने हिस्सा लेते हुए कहा कि व्हाइट पेपर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि अवाम ने उन्हें 11 मरतबा इख्तियार सौंपा, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ ज़राअत के लिए 6 घंटे ही बिजली फराहम की। उन्होंने कड़पा और विजयवाड़ा में कोयला न होने के बावजूद पावर प्लांट तैयार करने पर भी सवाल उठाया। KTR ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में पावर प्लांट्स की तामीर न करने की वजह से रियासत की तश्कील तक 2700 मेगावाट के खसारे का सामना रहा था। BRS के कारगुजार सदर ने कहा कि तेलंगाना में बरखी मसाइल के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। యాభై 55 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర, కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వాకం, విద్యుత్ విషయం అడుగుతారు ఇనరా మళ్ళా అదే చెప్తున్నా అధ్యక్ష, నేను చెప్తలేను। వైట్ పేపర్లో ఇలా చాలా గొప్పగా ఈ ప్రభుత్వమే స్పష్టంగా చెప్పింది అధ్యక్ష। ఏం చెప్పింది అధ్యక్ష?
మాకు ప్రజలు 11 సార్లు అవకాశం ఇస్తే 50 ఏళ్ళ అవకాశం ఇస్తే మేము ఇయ్యగలిగింది 2014 నాటికి 6 గంటల కరెంటు మాత్రమే. అంతటి అసమర్థత మాది, అంతటి చేతగానితనం మాది అని వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు. అధ్యక్ష చెప్పనండి అధ్యక్ష, నేనేం అన్పార్లమెంటరీ మాట్లాడతలేను, శ్వేతపత్రంలోదే మాట్లాడుతున్నాను. అధ్యక్ష కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష ఇప్పుడు మీది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు సార్. అధ్యక్ష మీరు మాకు అవకాశం ఇవ్వాలి సార్, తప్పు సార్ సార్ ఆయన మాట్లాడినప్పుడు నాకు అవకాశం ఇవ్వాలి మీరు దయచేసి. అధ్యక్ష విజయవాడలో రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ కేంద్రం ఎక్కడ పెట్టిన అధ్యక్ష? కడపలో బొగ్గుందా అధ్యక్ష? కడపలో నీళ్లున్నాయా అధ్యక్ష? విజయవాడలో బొగ్గుందా? ఇలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. ఆ రోజు తెలంగాణలో విద్యుత్ కేంద్రాలు కట్టకుండా తెలంగాణ ఏర్పడే నాటికి 2700 లోటు మెగావాట్లతో 2700 మెగావాట్ల లోటుతో ఆనాడు మాకు నష్టాల్లో అప్పజెప్పిపోయింది. వీళ్ళు కాదా అధ్యక్ష? 6 గంటల కరెంట్ ఇచ్చింది వీళ్ళు కాదా? నేదునూరు గురించి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష, నేదునూరు గురించి చెప్తా అధ్యక్ష. నేదునూరులో భూసేకరణ చేసి ఆయన చెప్పిందే చెప్తున్నా సార్. నేదునూరులో గ్యాస్ ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రం పెడతామన్నారు. శంకర్పల్లిలో జయపాల్ రెడ్డి గారు, మేము ఒక నేదునూరులోనే ధర్నా చేయలేదు సార్. మీ జిల్లా శంకర్పల్లిలో కూడా మేమే ధర్నా చేసినాం, నేదునూరులో కూడా మేమే ధర్నా చేసినాం. 2 దగ్గరలో రైతుల భూములు తీసుకున్నారు. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट की मौतरी के खिलाफ कल यानी 22 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के तमाम कायदीन एहतजाज करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह दोनों पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि दोनों पार्लियामेंट से मुताल्लिक मौज़ूआत पर ऐवान के बाहर खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौतली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत और वजीर आजम खुद नहीं चाहते कि ऐवान चले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में पार्लियामेंट की हिफाजत की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक मौजू को उठाया जा रहा था और ये सवाल किए जा रहे थे कि ये कैसे क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। अपोजिशन हुकूमत से इस बारे में जवाब चाहते थे। वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों ऐवान में नहीं आए और उन्हें जो बातें ऐवान में करनी चाहिए वो ऐवान के बाहर कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाज़ेह किया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मौतली के मामले पर जुमा को जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। वाज़ेह है कि ऐवान में हुकूमत से जवाब का मुतालबा करने पर लोकसभा और राज्यसभा से 143 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक ही शुड कम एंड स्पीक इन द हाउस फर्स्ट, लोकसभा राज्यसभा. इंस्टेड ऑफ दैट ही वाज स्पीकिंग आउटसाइड लखनऊ, वाराणसी and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case. But in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha and Chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak and we will give some facts and you should explain why this happened. One thing. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात की फराहमी के दावे पर सवाल उठाया और PMAY के तहत मकानात की निशानदही करने पर जोर दिया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में PMYA यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले पर बहस हुई। हुकूमत का दावा है कि रियासत महाराष्ट्र में 78.27 लाख मकानात की तामीर मुकम्मल करते हुए इस्तफादा कुरिंदगान में मकानात तकसीम कर दिए गए हैं। जुमेरात को इस मामले पर हुई बहस में हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लिया और औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में
PMYA के तहत तामीर करदा मकानात की निशानदही करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को सिर्फ 4.80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हैदराबाद MP ने अमृत में महाराष्ट्र के लिए 3,534 करोड़ रुपए मख्तस किए जाने के बावजूद सीवरेज के काम न करवाने पर भी नाराजगी का इजहार किया। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। स्पीकर सर, अगर आप जवाब देखेंगे मंत्री जी का, तो PMAY में उन्होंने कहा है कि 78.27 लाख आर कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड टू द बेनिफिशियरीज। फिर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में 11,224,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए। औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फूल का हार पहनाऊंगा। दूसरी बात यह है सर, आप ये देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को एलोकेशन है 2021 और 26 में 3,758.50 करोड़। आपके 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं उसके, और आपने सिर्फ 480 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे ही आप ये देख लीजिए, अमृत में महाराष्ट्र में आपने कमिट किया 3,534 करोड़, और इस साल 2023-24 में क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में आपने जितने 78.27 लाख और कंप्लीटेड कह रहे हैं आप, एक घर औरंगाबाद में नहीं बना। और आप अमृत में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिकली कह रहा हूं आपको, ना कि कितने वहां पर सीवरेज लाइन हुए, कितने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी सर। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन और कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 दोनों के मुतासरीन की तादाद में रफ्ता इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में कोरोना से 358 लोग मुतासिर हुए, जबकि JN1 के 21 मामला दर्ज किए गए। मुल्क अभी कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था कि उसके झेली किस्म JN1 ने दस्तक दे दी। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों ने एक बार फिर मुल्क में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। दूसरी जानिब कोरोना की झेली किस्म JN1 के भी मामलात में रफ्ता इजाफा हो रहा है, जो कि तशवीश का बास बन रहे हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 358 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, और इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 2,669 हो गई है, और मुल्क भर में अब तक एक्टिव केसेस की कुल तादाद 4,44,70,576 रिकॉर्ड की जा चुकी है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 के केसेस बुनियादी तौर पर रियासत केरला, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केरला से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रियासत में 300 नए केसेस भी सामने आए हैं। मरकजी महकमे सेहत ने कहा है कि एक्टिव केसेस की तादाद कुल केसेस का सिर्फ 0.01% है, और सेहतयाब होने वालों की शरह 98.81% बनी हुई है। शरह अमवात 1.18% रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट दोनों के केसेस में इजाफे को देखते हुए वज़ारत सेहत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है।
AIMIM चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए AIMIM ने भी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के साथ मिलकर जद्दोजहद की थी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के ऐवान असम्बली में ये कहने पर कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। AIMIM चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि उस वक्त आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी थे और कांग्रेस AIMIM दोनों ने मुत्तहिद होकर 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए जद्दोजहद की थी। कायदे मुक़र्ररा ने आन जहानी राजशेखर रेड्डी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को इंतखाबी मंशूर में शामिल किया था, जिसके बाद YSR और AIMIM ने रिजर्वेशन हासिल करने के लिए जद्दोजहद की। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर भी उस जद्दोजहद का हिस्सा रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोनों जमातों ने मिलकर 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए लड़ाई की है और अब सिर्फ ये कहना कि कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं सरासर गलत है और मजलिस भी उसका हिस्सा रही है। Speaker sir, I would like to come on record and also clarify on one last thing which is very important. Honorable Chief Minister Saab had said that it was Congress which gave the 4%. Let me remind and correct, that time he was not in Congress. That time he was, I don't know, anyway. Sir, please. Sir, please. It was Rajshekar Reddy, sir. Sir, I would like to correct the record, sir. Sir, it was Rajshekar Reddy, MIM and Congress both together were successful in getting the 4% reservation, sir. One cannot take this credit. We cannot forget Rajshekar Reddy, sir. And Rajshekar Reddy was a true gentleman, sir. Because of his nature, we were together, sir. And at that time, leaders from Delhi, sir, again I do not want to mention the name, they came and met my late father at my father's residence. My father told, include in your manifesto about reservation to Muslims. Then MIM will come together with you and we will work. Rajshekar Reddy Saab included that in the Congress manifesto in United Andhra Pradesh. After that, together, Rajshekar Reddy and myself, we struggled, sir. We fought for it, and also Muhammad Ali Shabbir was also part of it, sir. So we together got the 4%. Do not say that it is only Congress who got 4%. This is unfair. We were also part of it. पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर मरकजी वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट की हिफाजत की जिम्मेदारी CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दी है। दिल्ली पुलिस के जवान अब तक पार्लियामेंट की सिक्योरिटी संभाले हुए थे, लेकिन अब वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से मुताल्लिक जिम्मेदारियों को दिल्ली पुलिस से CISF को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। ये फैसला 13 दिसंबर को सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी और उसके बाद एक जांच कमेटी के मशवरों की बुनियाद पर लिया गया है। वाज़ेह है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में सिक्योरिटी खामियों का इशारा दिया गया है। रिपोर्ट में खास तौर से दाखिली दरवाजे और विजिटर्स की जांच के वक्त खास तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले CISF पार्लियामेंट हाउस का सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लेगा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए बजट मख्तस करने पर बीजेपी गोशा महल MLA राजा सिंह ने जहर उगलते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम ममालिक समेत कई ममालिक में कलअदम करार दी गई तंजीम की हिमायत कर रही है।
राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कांग्रेस पार्टी पर ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और सऊदी अरब समेत कई ममालिक में कलअदम तंजीम की हिमायत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात की मुतनाज़ा तालीमात की वजह से उस पर पाबंदी लगाई गई है। मलून राजा सिंह का कहना है कि कांग्रेस का इंतहा पसंद नजरियात की मुसलसिल हिमायत करना पार्टी की तरजीहात और मकासद पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत ने 6 जनवरी से विकाराबाद जिले के परगी मंडल में तबलीगी जमात के 3 रोजा इज्तिमा के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए मख्तस किए हैं और दीगर जरूरी इंतजामात की भी इजाजत दे दी है। बीजेपी कायदीन कांग्रेस हुकूमत के इस इक़दाम पर चिराग पा है और वो कांग्रेस हुकूमत समेत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद कर रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए सदर के तौर पर बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को मुंतखब करने पर पहलवानों ने अपने गुस्से का इजहार किया। साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया ने साबिक WFI प्रेसिडेंट जो लड़कियों को हरासा करने के मामले में मुलविस है, उसके करीबी को ओहदा सौंपने पर नाराजगी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए संगीता फोगाट ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे लोग मुल्क में अहम ओहदों पर फायज हो रहे हैं और अब लड़कियों को फिर से हरासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि लड़कियों को हरासा करने के मामले में एहतजाज करने के बावजूद भी वो कोई तब्दीली नहीं ला सके। दूसरी जानिब रेसलर साक्षी मलिक ने भी अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पहलवान 40 दिन तक सड़कों पर सोए रहे, एहतजाज किया। मुल्क के कई हिस्सों से लोगों ने उनकी हिमायत की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर ब्रिजभूषण सिंह के करीबी को WFI का सदर मुंतखब कर लिया गया तो वो रेसलिंग छोड़ देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करने के बाद रेसलर साक्षी मलिक को फूट फूट कर रोते देखा गया। रियासत गुजरात के सूरत में एक रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट को भीड़ ने बेदर्दी से पीट दिया। समाजी कारकुन पीयूष धनानी मोटरसाइकिल सवारों को सड़क की गलत सिमत में गाड़ी चलाने से रोकने और उन वाकयात को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए मशहूर हैं। सूरत के कापुदरा में एक स्कूटर सवार को रॉन्ग साइड पर जाने से रोकने पर भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। पीयूष धनानी ने कापुदरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुलजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। नामालूम अपराध के खिलाफ IPC की दफा 323, 504, 506(2) और 114 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीयूष के वीडियोस में अक्सर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों और उनके दरमियान झगड़ों के भी वाकयात देखे जा चुके हैं और अक्सर पीयूष को गाड़ी के आगे भी सोते देखा गया है ताकि वो मोटरसाइकिल सवारों को रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से रोक सके। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में आवारा कुत्तों के हमले से बचने के लिए खौफजदा मोटरसाइकिल सवार खातून ने एक करीबी मकान के अहाते में खड़ी साइकिलों को टक्कर मारी और फिर तवाजुन खोकर गिर पड़ी। चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों के हमले में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज ही यानी 20 दिसंबर को सेक्टर 11 में कुत्तों ने एक ज़ईफ शख्स पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। जुमेरात को सेक्टर 38 में आवारा कुत्तों ने मोटरसाइकिल सवार खवातीन का पीछा किया। कुत्तों के काटने से बचने के लिए खवातीन ने करीबी मकान में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़ी साइकिलों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो दोनों तवाजुन खोकर गिर पड़ी। लेकिन खुशाइन बात यह रही कि कुत्तों का झुंड उन पर हमला किए बगैर ही वहां से चला गया।
जराये ने बताया है कि चंडीगढ़ में जारिया साल कुत्तों के हमलों के 10,624 मामला दर्ज हो चुके हैं। आवारा कुत्तों की बहुतात और हमलों से लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है और वो इंतजामिया से उन्हें कुत्तों के हमलों से महफूज रखने की मांग कर रहे हैं। कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में एक साबिक रॉडी शीटर की बहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। शहर हैदराबाद में फिर एक बार कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 2 कत्ल की वारदातें पेश आ चुकी हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में गोपी होटल के करीब अनिल नामी साबिक रॉडी शीटर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एसीपी जावेद ने भी जाए वक़ू का मुआयना किया है। कुलसुमपुरा पुलिस और क्लोज टीम ने शवाहिद इकट्ठा करते हुए गोपी नामी मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल एचपी डेस्कटॉप लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।